Good morning, students. Welcome back in the chapter of carbon and its compound. In previous lecture, students, we have talked about the introduction of covalent bond. In that lecture, we have talked about the completion of octet by the carbon atom, how carbon completes its octet. Now today we are going to discuss about the bonding in carbon, that is covalent bond, and how this covalent bond is formed by the atoms. Okay, one by one we will discuss all these things in this lecture. So students, we are going to discuss about bonding in carbon, that is covalent bond. First of all, we have to know about covalent bond. What is covalent bond? The bond which is formed by the mutual sharing of electrons between two atoms of element is known as covalent bond. So the compound in which covalent bond is found, that is called as covalent compound. फ्रेंड्स, जब किसी भी एलिमेंट के एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग, आपको स्टूडेंट समझने की जरूरत है व्हाट इज म्यूचुअल शेयरिंग, बराबर की साझेदारी. इफ वन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय फर्स्ट एटम, देन one electron must be contributed by the second atom. This contribution is known as mutual contribution, या this sharing is known as mutual sharing. जब इस तरह की शेयरिंग एलिमेंट्स के बीच में होती है, एटम्स के बीच में, तो इसी को म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं. तो जब एलिमेंट के एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, तो ऐसी शेयरिंग से बना हुआ जो बॉन्ड होता है, दैट इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड. एंड सिंपली ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, दैट कोवैलेंट बॉन्ड, दैट कंपाउंड इज नोन एज कोवैलेंट कंपाउंड. फ्रेंड्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, द कंपाउंड्स हैविंग कोवैलेंट बॉन्ड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, low boiling point, because this covalent bond is a weak van der Waals force that found in the compounds. We can say that the covalent bond is weaker than the ionic bond. Okay, one more thing, students, you must know that if only one electron is shared between two atoms, then single bond will form, then only one covalent bond will form. Friends, when two electrons are mutually shared by two atoms, then a double bond or two covalent bond will form. Friends, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब किसी भी एटम के बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो वहां पर एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर आप देख रहे हैं टू इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, ओके, देन अ डबल बॉन्ड विल फॉर्म बिटवीन देम. तो वहां पे दो कोवैलेंट बॉन्ड या एक डबल बॉन्ड आप कह सकते हैं. एंड सिमिलरली व्हेन थ्री इलेक्ट्रॉन्स आर म्यूचुअली शेयर्ड बाय two atoms like this, then a triple bond will form between them. तो ये आपको याद रखने वाली बात है. और वन मोर थिंग कि क्वाड्रुपल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल बिटवीन कार्बन एटम्स. ओके, फोर बॉन्ड यानी क्वाड्रुपल बॉन्ड नहीं पॉसिबल होता है, बिकॉज ड्यू टू दिस कार्बन लूजेज इट्स कैटिनेशन प्रॉपर्टी. ओके, कैटिनेशन प्रॉपर्टी इसकी लूज हो जाएगी, जिसकी वजह से इसके अंदर क्वाड्रुपल बॉन्ड फॉर्म नहीं होता. स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की, हाउ स्मॉलर मॉलिक्यूल फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग. So first of all we will talk about hydrogen. Friends, the molecular formula of hydrogen is H2. In H2 there are two hydrogen atoms and each hydrogen atom has one electron. If we electronic configure hydrogen, then we find that in K shell hydrogen
contain only one electron. So now these two hydrogen atoms has one electron. For the completion of their octet, they need one electron, one extra electron, and they will become like helium. Okay, so they mutually share to each other and complete their octet like this. एक इलेक्ट्रॉन की इनके बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होती है और इस म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन, एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है. सिमिलरली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज O2. Here there are two oxygen atoms are found in O2 molecule and the electronic configuration of oxygen is 2,6. In K 2 electron and in L shell 6 electron. Now both oxygen require 2 electron for completion of their octet. So for this purpose दोनों ही ऑक्सीजन के एटम अपने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअली शेयरिंग करते हैं लाइक दिस. 6 इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस, दोनों तरफ मैंने 6 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं. अब देखिए फर्स्ट वाले के पास 8 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑक्सीजन सिमिलरली आल्सो गेन 8 इलेक्ट्रॉन. दोनों इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर लेते हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है. चूंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, सो a double bond is formed between them, so bonding structure will be as. Similarly nitrogen, the formula of nitrogen gas is N2. In this molecule there are 2 nitrogen atoms and each nitrogen atoms has 7 electron. The configuration is 2 5. In K there are 2 L. K कंप्लीट है, L में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको कंप्लीट होने के लिए ऑक्टेट के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है. तो बोथ नाइट्रोजन एटम स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं दोनों नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है. कंप्लीट करने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, म्यूचुअली शेयरिंग. इस तरह से इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं. तो आपने देखा यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स आर म्यूचुअली शेयर्ड बिटवीन बोथ नाइट्रोजन एटम, सो अ ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन देम. सिमिलरली वाटर, द फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O. स्टूडेंट्स हेयर 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन. द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन आपने देख लिया, ऑक्सीजन 8 2 6 and hydrogen 1. This one is K shell, this one is L. Now HOH. Friends, दोनों ही हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन. तो ऑक्सीजन रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन and both hydrogen require 1 electron. So hydrogen mutually share with oxygen and complete their octet like this. Okay, and oxygen also complete their octet by the mutually sharing of इलेक्ट्रॉन बिटवीन हाइड्रोजन. देखिए दोनों हाइड्रोजन से इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा म्यूचुअल शेयरिंग से, तो ऑक्सीजन भी कंप्लीट कर लेगा अपना ऑक्टेट. इस तरह से इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स HOH. The formula of ammonia is NH3. Nitrogen 7 2 5 KL students, and hydrogen has only 1 electron. So in ammonia 1 nitrogen and 3 hydrogen like this. Nitrogen has 5 electron and hydrogen has 1 electron. The
electron of hydrogen is shown by cross. Okay, so हाइड्रोजन नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग, सेकेंड हाइड्रोजन सेम एज, एंड थर्ड तीनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे जिससे इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, एंड नाइट्रोजन विल आल्सो कंप्लीट दियर ऑक्टेट. यस, सो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस स्टूडेंट्स, इस तरह से. एंड सेम एज आप मीथेन के अंदर देख रहे हैं, मीथेन 1 कार्बन इज म्यूचुअली शेयर बाय 4 हाइड्रोजन. एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के 4 हाइड्रोजन एटम से क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं. सेम एज आप इसके इलेक्ट्रॉन डाट स्ट्रक्चर को स्टूडेंट्स इजिली ड्रा कर सकते हैं, खुद से इसको कीजिएगा. ओके, नाउ सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द electron dot structure. You have to attempt all these questions. I hope you will enjoy to attempt all these questions because electron dot structure is very interesting topic. Okay, if you find any difficulty you can ask me through the comment. Okay, on comment box. आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में. Thank you. Have a nice day.